Hello, good morning, students. Today I am going to discuss numerical problem of chapter Force and Law of Motion. You see, question number 1. How long will it take a force of 100 Newton act on a body of 20 kilogram so that it acquires a velocity of 100 meter per second? See, all of you. Then before solving the numerical problem, always I am saying, first you write what information given in question. You say solution. Given that AF is equal to 100 Newton act on a body of mass 20 kilogram. M is equal to 20 kilogram. So that it acquire a velocity of 100 meter. V is equal to 100 meter per second. And you see, to acquire the velocity 100 meter per second means initially that body is in state of rest. State of rest. U is equal to 0. In this question, what is asking? We find out how long means कितना समय लगेगा उसको 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर करने में. अगर फोर्स लगाए 100 न्यूटन तो उस बॉडी को 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एक्वायर करने में कितना समय लगेगा. तो चलिए पहले हम फोर्स और मास दिया, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं. We know that AF is equal to MA. AF 100 Newton is equal to M 20 kilogram into A. A is equal to 100 by 25 meter per second square. Okay, I will solve this one. 100 Newton means what? kg meter per second square. ये तो न्यूटन होता है अपॉन 20 kg. kg से kg कट गया, 20 से 5 क्या आया? A is equal to 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सीलरेशन तो निकाल लिए हम. T निकालना है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन V is equal to U plus AT. V है 100, U की वैल्यू 0, A की वैल्यू 5 इंटू T तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. T की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो T is equal to हो जाएगा 100 by 5. 100 by 5 कितना जाएगा? 20. तो 20 सेकेंड में वह ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक्वायर बॉडी एक्वायर कर लेगा वेलोसिटी आपका 100 meter per second. That is your answer. In this way we can solve our question. Okay, next problem we can say. See second question. The velocity of a body of mass 10 kilogram increases from 4 meter per second to 8 meter per second when a force act on it for 2 seconds. What question asking there? What is the momentum before the force act? What is the momentum after the force act? Very simple, very easy. You see how we can solve? What is the gain in momentum per second? And lastly, what is the value of the force? तो हम आपसे हमेशा कहते हैं पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको लिख लेते हैं सोल्यूशन में. दूसरी चीज चेक करते हैं हम लोग कि जो इंफॉर्मेशन दिया है सारे के सारे एक ही यूनिट में तो हैं, एसआई यूनिट में ही तो हैं, एमकेएस यूनिट में ही तो हैं. नहीं है तो आपको करना पड़ेगा और यह ध्यान नहीं देंगे तो फिजिक्स में बार बार आपका आंसर गलत आएगा. चलिए हम करते हैं वर्क. सोल्यूशन. गिवन that M is equal to 10 kilogram
u is equal to 4 meter per second, v is equal to 8 meter per second, and t is equal to 2 seconds. That information given in your question. Given in question. Then first part what is asking here, what is the momentum before the force act, means initial momentum asking. A, momentum before the force acts is equal to m into u. M given 10 kilogram. 10 kilogram into u, 4 meter per second. Then what we can get? 40 kilogram meter per second. This is your first part answer. Second part you will see here, B. Momentum after the force act. Momentum after the force acts means what? Final momentum asking in this question. And final momentum is equal to what? M into V. mv 10 kilogram into 8 meter per second, then we can get there 80 kilogram meter per second. This is the second part. Third part, what is the gain in momentum per second? C. Gain momentum per second means what they are asking? They are asking the rate of change of momentum. Then final momentum minus initial momentum by time. Final momentum 80 kg meter per second minus 40 kg meter per second by 2 seconds. Then 80 minus 40 by 2, 20 kilogram meter per second square. This is the value of the gain momentum per second. Means in 1 second they acquired momentum 20 kilogram meter per second. Last for D you will share. What is the value of the force? Force is equal to mass into acceleration. Then mass here given 10 kilogram and acceleration when we can solve. You see here. First acceleration we calculate. We know that A is equal to V minus U by T. V value 8 minus 4 meter per second upon 2 seconds. Then 8 minus 4 by 2 meter per second square. Again force asking, then therefore F is equal to mass into acceleration. Mass given 10 kilogram into acceleration 2 meter per second square 20 kilogram meter per second square, or you can able to say 20 Newton force.
Then in this way, you see in the all the part, if you see this question is very large, you are feeling this question may be very difficult, but very easy. This question is very easy. You see how long this question? Very easy. Then if you see question is long, then you understand this question solution is very easy. Okay, next question I am going to solve. Problem 3. A 60 gram bullets fired from a 5 kilogram gun leaves with a speed of 500 meter per second. Find the speed velocity with which the gun recoil or jerk backwards. तो लास्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी बेस का एक क्वेश्चन है. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने बताया क्या था आपको, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. यह हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आया था फार्मूला, और उसी पे हम लोगों ने लास्ट में कह दिया था कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हेंस मोमेंटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन कोलिजन. अब यहां पे देखिए, हम आपके बुक में इसी क्वेश्चन को कई तरीके से किए हैं लोग, फार्मूला अलग अलग यूज कर दिए, लेकिन हम एक फार्मूला बताएंगे. जो फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है उसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन मोमेंटम के हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन. कोई जरूरत नहीं कि आप डिफरेंट फार्मूला डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कीजिए. मोमेंटम के ही मोमेंटम बेस पे जो क्वेश्चन दिए हैं एक ही फार्मूला यूज करो, उसी एक फार्मूले पे जो हमने बताया उसी पे सारा का सारा आंसर आ जाएगा. तो यह क्वेश्चन जो दिया है हम उसी फार्मूले पे डिस्कस करेंगे जो हमने फार्मूला बताया है. आपको ज्यादा फार्मूला बुक से नहीं देखने की जरूरत है, बुक से एक ही दिया है, वैसे ज्यादा नहीं, ये नहीं कि बहुत सारे मोमेंटम का फार्मूला दिया है. एक जो पढ़ा है वो, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक अलग से यूज किया है, उसी से रिलेटेड है. तो कोई जरूरत नहीं, इसी हम जो पढ़े हैं उसी से सॉल्व करेंगे. देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि पहले व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन इन योर क्वेश्चन दैट फर्स्ट यू राइट इन सॉल्यूशन given that m1 5 किलोग्राम, मान लीजिए गन का मास m1 है, m2 बुलेट का मास 60 ग्राम. अब देखिए 60 ग्राम को भी इसमें कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो किलोग्राम में इसको कन्वर्ट करोगे तो 60/1000 किलोग्राम हो जाएगा. अभी इतना ही लिखिए. u1 इक्वल टू 0, u2 इक्वल टू 0. इनिशियली दोनों क्या हैं, रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज आल्सो 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज आल्सो 0. v1 को हमने मान लिया v, इसका हम मान ले रहे हैं कि जब फायर होगी गन तो जो रिक्वायर करेगा गन, रिक्वायर आप जानते हो फॉर एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जब गन हम लोग फायर करते हैं गन से तो क्या होता है, बुलेट तो आगे जाती है, लेकिन अब आगे जाने से वो तो एक्शन हो गया, तो गन पे भी तो रिएक्शन फोर्स लगेगा, और उस रिएक्शन फोर्स के चलते गन रिक्वायर करती है, जर्क बैकवर्ड्स करती है, पीछे की तरफ आता है. तो वह वेलोसिटी को हमने मान लिया v, और v2 इक्वल टू एरिया 500 मीटर पर सेकेंड. बुलेट किस मास वेलोसिटी से जा रही है, गन से 500 मीटर पर सेकेंड. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. यही फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था. अब इसमें वैल्यू पुट करें, 5 किलोग्राम, 5 इंटू u1 0,
प्लस m2 वैल्यू 60/1000 इंटू 0, m1 अगेन 5 इंटू v1 को हमने कहा v प्लस m2 60/1000 इंटू 500, v2 की वैल्यू क्या है 500 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया, 5 इंटू 0 60/1000 इंटू 0 दैट इज 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारा टोटल क्या गया 0, 0 इक्वल टू 5v प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, ये देखिएगा 2 जा और ये कितना गया 30 आ गया ना, मीन्स प्लस 30। अब बताइए इसको 500 to 30 again, you see, then this 5b I will transfer in left hand side, minus 5b is equal to 30, b is equal to 30 by minus 5, तो ये कट जाएगा 5 6 जा 30, तो आंसर क्या जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि सर आंसर तो 6 मीटर पर सेकेंड दिया है और आपने आंसर निकाल दिया -6 मीटर पर सेकेंड। यस दैट इज करेक्ट। माइनस का मतलब क्या हो गया बैकवर्ड, रिक्वायर द गन। तो आप आंसर जब लिखेंगे hence gun require at velocity 6 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखिए हमने माइनस नहीं लिखा है, लिख दिया, वर्ड ही लिख दिया रिक्वायर्स मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो यहां माइनस साइन नहीं लिखेंगे हम। और इसीलिए आप देखोगे बुक में भी नहीं देगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड वर्ड नहीं लिखेंगे, गन जर्क बैकवर्ड विथ वेलोसिटी -6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वर्ड लिख देने से आपको कोई जरूरत नहीं है माइनस साइन लिखें। और इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। तो इसके बाद हम ये कहेंगे कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके देन, टुडे ओनली दिस मच। नेक्स्ट आई विल सी इन नेक्स्ट आवर लेक्चर। थैंक यू।